Hello students, we have been studying regarding the Say's law of market. 1803 children, French economist जिनका नाम था Jean Baptiste Say, he had developed this law. And the statement of the law, children, as we know, is very simple. It reads that supply creates its own demand. And we saw, children, how supply has the capacity to create its own demand. Then I explained to you, children, how Say's law is applicable in the barter economy. Barter economy, we were studying that goods are produced or services are rendered in exchange for other goods and services. So there is neither overproduction nor underemployment. If there is overproduction or there is shortage, then the transfer of resources takes place, children, and the aggregate supply becomes equal to aggregate demand. Children, today we are going to focus on the different concept of Say's law. That earlier we had barter economy, now we people are into the monetary economy. So as you can see the heading on your screen, children, Say's law in a money economy. Money economy, children, is an economy wherein money is used as a medium of exchange. That means we do not have the barter system. Money economy is the next step towards the monetary economy, we can say, from the barter economy to the money economy. So what we can analyze, children, कि Say's law जो है वो monetary economy में भी बच्चों लोग equally applicable होता है. अभी आपको लगेगा कि सर क्यों applicable होता है, तो barter system और monetary economy में difference ही क्या है कि बार्टर सिस्टम में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके उसके बदले में दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं. अच्छा, मॉनेटरी इकोनॉमी में हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं और उसके बदले में हम लोग क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं. सो द प्रेजेंस ऑफ मनी, क्या बोला है, द प्रेजेंस ऑफ मनी, इट डज नॉट इनवैलिडेट द लॉ. मतलब क्या कि बार्टर सिस्टम में जैसे ये Say's लॉ एप्लीकेबल होता है, चिल्ड्रन, इन अ सिमिलर वे दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल इवन इन द मॉनेटरी इकोनॉमी, बिकॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज मनी इज ओनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दे से कि मनी न्यूट्रल होता है, मतलब it does not influence the real process of production and distribution because it is only used as a medium of exchange. So children, let's see how Say's law is applicable in a money economy. So children, if you remember chapter number 2 जो हमने पढ़ा था अपने syllabus में, वो क्या था, circular flow of national income, और उसका पहला डायग्राम अगर आपको याद आ रहा है तो the diagram was something similar to what you see on your screen. Yes. So if you assume that people do not save money, कोई टाइप का होर्डिंग नहीं होगा गुड्स का, तो क्या होता है बच्चों लोग यहाँ पे कि फर्म्स फैक्टर इनकम करके, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट करके जितना भी पैसा हाउस होल्ड्स को देते हैं, तो हाउस होल्ड्स are going to spend the entire amount that you have received on consumption of goods and services. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि जितना पैसा जा रहा है उतना ही goods and services आएगा अपने पास. So it is in this particular situation, children, that money will flow, या फिर the money flow is actually going to correspond to the real flow of productive resources and goods and services. Okay, so as you can see in the diagram, children, if you remember, there were two factors or two agents, एक था firms और एक था households. इनका description अगर आपको याद आ रहा है तो households को मैंने क्या बोला था, they are called as the owners of factors of production. What about the firms, children? They are the users of factors of production. तो ठीक है, हाउसहोल्ड्स अपने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो यूज करने के लिए किसको देते हैं, फर्म्स को, और फर्म्स उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या देगा, तो आंसर है बच्चों लोग फैक्टर इनकम. क्या देंगे, फैक्टर इनकम. तो ठीक है, ये फैक्टर इनकम का एरो जो आपको दिख रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है, हाउस होल्ड्स की तरफ. अच्छा, अब ये फैक्टर इनकम किसके पास आ गया, हाउस होल्ड के पास. अच्छा, इनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म ने क्या किया रहेगा, they must have produced goods and services, children. So obviously
फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, फिर फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को पैसा दिया है एज अ फैक्टर इनकम. ओके, नाउ दोज गुड्स एंड सर्विसेज चिल्ड्रन विल कम टू द मार्केट, राइट? एंड ऑब्वियसली दोज गुड्स एंड सर्विसेज हु इज गोइंग टू बाय देम? हाउस होल्ड्स. इसका मतलब फर्म्स ने सप्लाई किए इधर गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए फर्म्स ने हाउस होल्ड को थोड़ी देर पहले पैसा भी तो दिया था. तो हाउस होल्ड्स आर गोइंग टू स्पेंड दैट मनी ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर हम लोग इधर से कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग इधर से किसी को खरीदने का ताकत भी दे रहे हैं. सो इट मीन्स द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दे क्रिएट इनफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ द हाउस होल्ड्स टू बी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये पैसा भी इन्होंने दिया है और गुड्स भी इन्होंने दिए हैं, इसलिए हम लोग बोलते हुए क्या बोलेंगे? दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. That's the concept that we generally have through this law. ठीक है? So the same explanation, children, and as you can see onto your screen there, that the figure above says that when firms obtain inputs, कौन से inputs मिलते हैं चलो firms को? Land, labor, capital और enterprise. अच्छा, उनको लोग क्या करते? They are used in the production. Okay? And then they pay them in the money form of wages, rent, interest and profit. मतलब क्या है? देखो, इनपुट्स लेने का हाउस होल्ड से और उसका पेमेंट करने का. अच्छा, अभी जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है बच्चों लोग, ये क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बिकम द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड्स. तो ये हाउस होल्ड्स का इनकम बन गया. अच्छा, अभी हाउस होल्ड्स के पास से जो पैसा जमा होता है, दे वांट टू स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, बट दोस गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय होम? द फर्म्स. आई होप यू चिल्ड्रन आर गेटिंग, चिल्ड्रन, हाँ, कि लाइक मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, तुम कंज्यूमर्स हो. अच्छा, तुम्हारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तुमने वो फैक्टर्स मुझे दिए, मैंने उसका पैसा दिया तुमको, रेंट वगैरह पे किया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा. अच्छा, और आपके फैक्टर्स को यूज करने मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने आपको रेंट दिया, प्लस मैंने प्रोडक्शन करके मार्केट में गुड्स भी भिजवाए हैं. तो वो जो पैसा मैंने आपको दिया, उसी पैसे से आप वो भी गुड्स खरीद सकते हैं ना जो मैंने मार्केट में सप्लाई किए हुए. मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मैं डिमांड भी क्रिएट करा के दे रहा हूं थ्रू दैट मनी. एंड सो देयर इज दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी विल टेक प्लेस, चिल्ड्रन, फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड्स और वापस से फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स. लेकिन ये सिचुएशन में बच्चों हम लोग अज्यूम करें कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट. इसलिए ये डायग्राम, इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, आई टॉट यू लाइक दिस, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग्स. इट मीन्स all the income or all the money that is received by the household will be spent on consumption of goods and services. और इस तरीके से बच्चों लोग supply is going to create its own demand. So that's how, children, this law is applicable in a monetary economy. अच्छा, अभी सवाल ये आता है बच्चों लोग कि बाय चांस अगर हाउस होल्ड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना पूरा पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम लोगों को अपने पैसे में से कुछ पैसा बचा के रखना है, that even if the households do not spend all of their income on consumption, इसका मतलब क्या होता है कि a part of their income is going to be saved. उन्होंने अपने इनकम का थोड़ा हिस्सा बचा के रखा है. हाँ, तो भी बच्चों लोग सर्कुलर फ्लो तो कंप्लीट होने वाला ही है. इट मीन्स सर्कुलर फ्लो विल बी मेंटेन. हाँ, बट व्हेन चिल्ड्रन, इफ सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आपने पैसा जो सेव किया है वो बैंक्स में जाएगा, बैंक से इन्वेस्ट होकर वापस से फर्म्स को एंटर करता है चिल्ड्रन, एंड देन द सर्कुलर फ्लो गेट्स कंप्लीटेड. You can see on the screen here another diagram, children, and if you can name it differently. अच्छा, let's analyze it first, children. ये क्या है यहाँ पे? फर्म्स. ये क्या है? हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड्स के पास क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यूज करने के लिए किसको देने का? फर्म्स को. फर्म्स उसके बदले में बच्चों क्या पे करने वाला है? फैक्टर इनकम. किसको? हाउस होल्ड्स को. अच्छा, अब ये पैसा हाउस होल्ड्स के पास आया. अभी हाउस होल्ड्स इसमें से कुछ पैसा क्या करेगा? खर्च करेगा. किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? कंजम्पशन. अच्छा, कुछ पैसा उन्होंने बचा के रखा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग्स. अभी जो सेविंग्स है वो हाउस होल्ड से निकलेंगे, यहाँ पे बैंक्स में जाते हैं और बैंक से आगे निकल के बच्चे लोग वो इन्वेस्टमेंट बन के वापिस से किसको मिलता है? फर्म्स को. सो इमेजिन करना बच्चे लोग, किसी फर्म ने आपको रेंट दिया 10,000 का, यहाँ से 6,000 के आपने गुड्स खरीद लिए.
अच्छा 2000 का आपने सर्विसेज यूज किया है, बचा हुआ 2000 आपने क्या किया, सेविंग बैंक में डाला, बैंक ने वही पैसा किसी कंपनी को बाद में लोन करके दे दिया, तो द फ्लो अगेन गेट्स कंप्लीटेड चिल्ड्रन। क्लियर? अच्छा, सो व्हाट डज दिस फिगर से चिल्ड्रन, दैट इनकम व्हिच इज रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और बच्चों बाय चांस अगर कोई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस आता भी है बच्चों लोग, तो भी वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज द इक्वालिटी विल बी ऑलवेज मेंटेन। What equality are they talking about children? Equality between savings and investment. Why? Because interest rates are flexible. क्योंकि interest rates कैसे होते हैं? Flexible होते हैं। तो flexible interest rates का मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि interest rates will be able to go up, they will be able to go down. It means children कि अच्छा सबसे पहले आपके सामने सवाल होता है बच्चों लोग कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर ब्याज बोलते हैं उसको, लेकिन वो क्यों मिलता है? क्योंकि आपने कुछ पैसा सेव करके रखा है तो इसलिए आपको रिवॉर्ड मिलता है ना। सो हियर दे से दैट इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर सेविंग। आपने पैसा बचा के रखा तो आपको अवार्ड मिला। अच्छा अभी आपको ये भी पता रहेगा बच्चों लोग कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, हाइयर द इंटरेस्ट रेट हाइयर द सेविंग एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स अगर बैंक्स आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगी तो आप क्या करोगे? ज्यादा सेविंग्स करोगे क्या कम? ऑब्वियसली ज्यादा। अच्छा बैंक से इंटरेस्ट कम कर दिया तो आपका सेविंग्स ज्यादा रहेगा क्या कम रहेगा? कम रहेगा। हाँ, इट मीन्स चिल्ड्रन कि लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन हाइयर द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा। कुछ लोग अगर बैंक्स आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देगी तो आप ज्यादा पैसा बोरो करके इन्वेस्ट कर सकते हो। Yes, it means children कि like there is that inverse relationship we can have children. अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको बच्चों लोग। क्या बोला मैंने आपको कि जितना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा उतना ज्यादा आप सेविंग्स करोगे, जितना कम इंटरेस्ट मिलता है उसके उतने आपके सेविंग्स क्या रहेंगे? कम रहते। लेकिन जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है उतना इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा उतना इन्वेस्टमेंट्स कम रहेगा। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप्स दिखते हैं बच्चों लोग। अच्छा सपोज इफ द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है बच्चों लोग, सेविंग्स कम है, तो इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा मार्केट में। हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो सेविंग्स भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अच्छा लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट्स क्या होने वाले हैं? दे विल फॉल, और फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं। What we can actually study through this particular diagram might be, ठीक है? As you can see children, the diagram that I am showing you on the board here is actually talking about the interest rate flexibility. Okay, analyze it properly. अभी यहाँ पे x axis पे क्या बताया जा रहा है आपको? Savings and investments. Okay, what about the y axis children? It's rate of interest. अभी ये जो कर्व आपको दिखाया गया है कौन सा कर्व है? SS, इट स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। अच्छा अभी थोड़ी देर मैंने आपको बोला था पहले कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है उतना सेविंग्स ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो सेविंग्स भी कम होते हैं। तो इसकी वजह से बच्चे लोग सेविंग्स कर्व का जो स्लोप है वो कैसे दिख रहा है आपको? अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा अभी सवाल आता है बच्चों लोग कि ये जो कर्व दिखाया जा रहा है आपको, ये कौन सा कर्व है? I. What does that stand for children? I for investments. कौन सा स्लोप दिख रहा है आपको? डाउनवर्ड स्लोप। अच्छा डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। अच्छा अभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का जो कर्व है कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों लोग? पॉइंट E। तो उसकी वजह से मार्केट में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रेट कितना रहेगा? N, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? R। सो ए स्टार्टिंग में बताया हुआ है, देखो यहाँ पे इन द अबव फिगर SS इज द सेविंग्स कर्व एंड I इज द इन्वेस्टमेंट कर्व। ओके, सो R इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, उसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इक्वल होते हैं एट पॉइंट E। अच्छा बाय चांस चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, ये देखो इन्वेस्टमेंट कर्व आगे चला गया,
तो इन्वेस्टमेंट कर्व विल शिफ्ट टू I1। मतलब बच्चों लोग क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट अभी भी R पे ही है, लेकिन मार्केट में बच्चों लोग इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए। कितने थे पहले? ON तक थे, ON, अभी कितने हो गए? OQ। बच्चों अभी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया, तो इसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा पता है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट हो गया कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है बच्चों लोग। तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? R1। और उस टाइम पे आपको दिखेगा कि क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है मार्केट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेविंग्स थोड़े कम हो जाएंगे। तो सेविंग्स कितने पे आते हैं? M पे आते हैं। क्लियर? अच्छा, यू डोंट नीड टू गेट वरीड अबाउट द डायग्राम चिल्ड्रन। आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे कि इनिशियली एक सेविंग्स और एक इन्वेस्टमेंट्स होता है, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होता है। बाद में मार्केट में बच्चों क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने की वजह से आपको दिखेगा कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, मतलब एक्सेस इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो फिर आपको पता है मार्केट में सेविंग्स कम हो जाते हैं। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए, मतलब वापस से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये डायग्राम आपको ये बताता है कि लाइक इंटरेस्ट रेट्स किस तरीके से फ्लेक्सिबल होते हुए वापस से अपने आप में एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर? सो हियर चिल्ड्रन यू कैन analyze that particular diagram and you actually understand one thing that Say's law जो था बच्चों लोग, ये बार्टर इकोनॉमी में भी उतना ही एप्लीकेबल होता है, बट इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल इन अ इकोनॉमी विच इज यूजिंग मनी। ओके, नाउ एनीवन गेटिंग कंफ्यूज आफ्टर लुकिंग एट दैट डायग्राम? ओके, सबसे पहले बच्चों लोग क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो डायग्राम्स में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझने का बच्चों लोग, डायग्राम्स ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं। अच्छा, फिर आप कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछते रहोगे, सर डायग्राम नहीं बनाया तो मार्क्स मिलेगा क्या? तो आंसर आपको पता है बच्चों लोग, जहां पे भी, बिकॉज इट इज मेंशन ऑन द टॉप दैट कि ड्रॉ डायग्राम्स वेरेवर नेसेसरी। क्लियर? अच्छा, last lecture children I also told you like how this question is asked in the exam. They might ask you like this, Say's law of market. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, Say's law का स्टेटमेंट देने का, फिर बार्टर इकोनॉमी में कैसे चलता है, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट फंक्शंस इन अ मॉनेटरी इकोनॉमी। अच्छा, लेकिन बच्चों ये जो लास्ट का डायग्राम यहाँ पे दिया है, ये अगर मेंशन किया रहेगा तो ही रिक्वायर्ड है, नहीं तो फिर आप अपना आंसर यहाँ पे क्लोज कर सकते हो इधर, मतलब दिस डायग्राम वोंट बी रिक्वायर्ड। ठीक है? आप विथ सेविंग्स और विदाउट सेविंग्स वाला डायग्राम भी एक्सप्लेन करोगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो सपोज चिल्ड्रन एज वी हैव बीन एनालाइजिंग, दिस इज ऑलमोस्ट द फिफ्थ टॉपिक दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। ये फिफ्थ वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आप उसमें से कितना पढ़ रहे हो, कितना वीडियो देखते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों लोग, क्योंकि आप ऑलरेडी SY BCom में हो। अच्छा, तो यू शुड बी एबल टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आप में से बहुत सारे लोग यही सोचते रहेंगे, अरे चलो सर ने लिंक तो भेजा हुआ है ना, एग्जाम से पहले देख के जाएंगे। लेकिन बच्चों लोग आपको भी पता है कि 17 चैप्टर्स हैं, तो एग्जाम के पहले आप 17 के 17 चैप्टर्स नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग के सिंपल टॉपिक्स है चिल्ड्रन, जैसे कि वी स्टडीड अबाउट लाइक पहला वाला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन वाला होता है, फिर वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में मैंने आपको 4 डायग्राम्स बताए थे। देन चिल्ड्रन वी स्टडीड अबाउट द बिजनेस साइकिल्स, राइट? अच्छा, उसके बाद में मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ाया। अच्छा, और ये कौन सा टॉपिक है? सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं बच्चों लोग जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, और उसमें से एक रहेगा सेज लॉ ऑफ मार्केट। जैसे एक क्वेश्चन हमेशा आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर आता है, दूसरा एक आध क्वेश्चन रहेगा बच्चों लोग जो फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, जो अप्स एंड डाउन्स वाला क्वेश्चन था वो, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सेज लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर। क्लियर? यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे मैं ये टॉपिक वाइंड अप करने वाला हूँ बच्चों लोग, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स है तो हम लोग थोड़ा फास्ट भी जा रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह होता है बच्चों लोग, तो यू कैन लाइक व्हाट्सअप नंबर वगैरह सर ने आपको दिया रहेगा, तो आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन है, अगर नोट्स का कुछ PDF वगैरह भी चाहिए रहेगा,
तो प्लीज़ या तो आप यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर अपने व्हाट्सएप के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, बी सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।